Welcome all my students of VTC 1064. Now I am give some definition of the important factor related with management, that is planning, organization वगैरह वगैरह. What is planning? तुम लोग को क्वेश्चन आ सकते give the definition of planning. Planning is the foundation of business management. Without planning, no business can accomplish its function smoothly. In the opinion of Henry Fayol, the plan of action is at the same time the result envisaged, the time of action to be followed, the stage to go through, and method to use. So we may say planning is the selection of course of action with a view to achieving the desired objectives. Selection of the proper and best alternative out of various alternatives is the main theme of the planning. তার মানে তোমাদের কি বুঝলে তোমরা লোক क्या समझा ना, planning is the main factor. Without planning any action may not success হয় না, সম্ভव হয় ना. तुम लोग कुछ काम जब करेगा, कोई काम बोलो ना कहना, कुछ काम करने के पहले तुम लोग को सोचने पड़ता है, उसके बाद सोचने के साथ साथ तुम वो काम कैसे करेगा उसके बारे में तुमको सिद्धांत लेने पड़ता है. यही है प्लानिंग. तो प्लानिंग है. तुम लोग को शॉर्ट क्वेश्चन बोलेगा, 1 नंबर आएगा. तुम लोग को क्वेश्चन बोला व्हाट इज़ प्लानिंग, तुम लोग क्या देगा. प्लानिंग इज़ द सिलेक्शन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन with a view to achieving the desired objectives. Selection of proper and best alternative out of various alternatives in the main theme of the planning. Okay, प्लानिंग का डेफिनेशन तुम लोग को हम बताया. प्लानिंग इज़ द फाउंडेशन ऑफ बेसिक मैनेजमेंट. क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स में रह सकता है. व्हाट इज़ द फाउंडेशन ऑफ बेसिक मैनेजमेंट और बिजनेस मैनेजमेंट. तुम लोग क्या बोलेगा ना, प्लानिंग इज़ द फाउंडेशन ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, द बेसिक पार्ट ऑफ मैनेजमेंट. ओके, नेक्स्ट हम बोलेगा व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन मतलब ना प्रतिष्ठान. 2 से 1 से अधिक आदमी एकत्रित होके जब कोई काम परिचालना करता है वो है ऑर्गेनाइजेशन. अर्थात 2 अधिक 1 अधिक व्यक्ति समन्वय गठित संस्था. द टर्म ऑर्गेनाइजेशन मे बी एक्सप्लेन्ड इन डिफरेंट वे. हियर दिस टर्म इज एक्सप्रेस्ड इन 2 सेंस. Firstly, organization is explained as a dynamic subject and is recognized as one of the functions of management by means of which the manpower is united and general objectives can be fulfilled. This is called the process of organization. मतलब यहाँ पर प्रतिष्ठान का लक्ष्य फुलफिल करने के लिए जहाँ पर मैन पावर मतलब आदमी लोग इकट्ठा होता है. सेकेंडली, फ्रॉम अनदर पॉइंट ऑफ व्यू, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ए स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशन बिटवीन वर्कर एंड वर्क एट डिफरेंट लेवल which is formed for achievements of some common purpose. When organization is looked upon a process, it is regarded as one of function of management like planning, direction and control. मतलब सेकंड पार्ट में क्या बोला मैनेजमेंट का, वहाँ पर फंक्शन के মানে কাজের দিকে লক্ষ্য করে বলছে যে কি কে বলছে না, मैनेजमेंट वर्कर एंड वर्कर रिलेशन, वर्क संयोग, ये है वर्कर और वर्क, ये दोनों के बीच में मतलब टॉप लेवल टू लो लेवल सबके अंदर से संयोग, कोऑर्डिनेशन, इसको भी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर बोला गया. अकॉर्डिंग टू G.E. मिलवर्ड, उसके क्या बोला, उसका ओपिनियन क्या है ना, ऑर्गेनाइजेशन इज़ द हार्मोनियस
interrelation of function and stuff. আমরা ইন জেনারেল আমরা ম্যানেজমেন্টের এই কী বলছিলাম তোমাকে আমি বলছিলাম যে অর্গানাইজেশনের ডেফিনেশন কী দেবো না, দ্য সেন্ট্রাল থিম অফ অর্গানাইজেশন রিলেটস টু দ্য প্রসেস অফ harmonization between work and worker. It develops a useful relation at various stages of the business. अर्थात इन जनरल सेंस में वर्क एंड वर्कर ये दोनों बीच के संपर्क स्थापन करने के लाते दोनों के जो संपर्क है वही है ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक्स. व्हाट इज डायरेक्शन. डायरेक्शन मतलब कोई निर्देश प्रदान. डायरेक्शन ऑफ बिजनेस अंडरटेकिंग is an important part of management. In case of management, only with the formulation of plans or collection of different factors of work performance, the fulfillment of business objective is not possible. तुम जितना ही प्लान करो ना तुमको प्लान रह जाएगा, उसको वास्तव में उसको संपादन नहीं होगा तो प्लान का कोई वैल्यू नहीं है. प्रॉपर डायरेक्शन इज़ टू बी गिवन टू द डिफरेंट ह्यूमन फैक्टर फॉर वर्क परफॉर्मेंस. डायरेक्शन मतलब निर्देश देना, तुम कैसे करेगा, क्या करेगा, कौन क्या करेगा, ये है डायरेक्शन. द मीनिंग ऑफ डायरेक्शन इज़ शो द राइट वे टू सुपरवाइज वर्क, प्रोवाइडिंग लीडरशिप ऑफ वर्क and to perform the work by the employees concerned with the organization. Organization का वर्कर कौन तरीका में काम करेगा, उसको काम करने का कर्मपंथा क्या होगा, वही है डायरेक्शन. Direction is the heart of management whose function is to fix up the duty, to order, to provide dynamic leadership. দেখো প্ল্যান হলো, প্ল্যান একটা ইম্পর্টেন্ট, তার সাথে অর্গানাইজেশন সম্পর্ক হলো, তার সাথে সাথে কে কোন কাজ করবে সেইটা কিন্তু कौन काम करेगा उसका निर्देश कहाँ से आता है, डायरेक्शन से आता है. ओके. उसके बाद है कंट्रोल. सबको डायरेक्शन दिया गया, सब काम करता है, लेकिन सब कोई किसको पत्ता नहीं देता है, सब कोई किसको काम मैंने बात नहीं सुनता है, इसको ओबे नहीं करते, तब तो बिजनेस नहीं चलेगा. তুইও বলছিস তুই এই কাজটা কর, তুইও বলছিস এই কাজটা কর. মনে করো দুজন ম্যানেজার রয়েছে, একজন ম্যানেজার একজন ওয়ার্কারকে বলো তুমি এই মেশিনটাকে তুমি ঠিক রিপেয়ার করো, আর একজন বলো না তুমি এই মেশিনটা রিপেয়ার করো, তুমি অন্য একটা মেশিনে চলে যাও. এরকম যদি 10 জন 10 রকম দেয় কাজের কথা বলে, তাহলে একটা ওয়ার্কার কীভাবে কাজ করবে, তাহলে নিজেদের মধ্যেই তো সেখানে ঝামেলা হয়ে যাবে, सब अपन का बीच में तो वहाँ पर झमेला खड़ा हो जाएगा, तब क्या होगा, ये तो सही नहीं. इसलिए वहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया कंट्रोल. व्हाट इज़ कंट्रोल. कंट्रोल मतलब नियंत्रण करना. कंट्रोल इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड द लास्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस. Control refers to verify whether specific function have been performed in accordance with predetermined target and to rectify the errors if any in the process. কন্ট্রোলের মাধ্যমে কি হচ্ছে যে স্পেসিফিক যে কাজটা হচ্ছে, जो स्पेसिफिक काम करने पड़ेगा, जो स्पेसिफिक काम वहाँ पर पहले से निर्धारित है, जो काम वर्कर करेगा, जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो उद्देश्य है, मैनेजमेंट का जो उद्देश्य है, उद्देश्य मिलने के लिए, उद्देश्य सफल करने के लिए जो प्लान किया, प्लान के साथ साथ क्या किया ना, ऑर्गेनाइजेशन स्थापन किया, ऑर्गेनाइजेशन का रूपायन किया, उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन में अंदर वहाँ पर डायरेक्शन डाला गया, कौन को क्या काम करेगा, किसका उद्देश्य क्या है, किसका काम क्या है वो है. उसके साथ साथ कंट्रोल लास्ट आ गया. कंट्रोल सबका नियंत्रण करता है, कि सबका बीच में नियंत्रण कंट्रोल करता है. कंट्रोलिंग नहीं रहेगा तो बिजनेस में प्रॉब्लम आ जाएगा, प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा. सो व्हाट इज़
control na, it may be said the brief that control is the concerned with verifying whether everything is being accomplished at various level of management as per predetermined plan वगैरह वगैरह। ठीक है, तो क्या ना, प्री डिटरमाइंड जो प्लान था उसको प्रॉपर वे में करने के लिए कंट्रोलिंग का एक विशेष भूमिका है। ओके, তাহলে তোমাদের আমি কিন্তু এখানে আমি এই ম্যানেজমেন্ট রিলেটেড যে ফ্যাক্টরগুলো আছে সেইগুলোর ব্যাপারে তোমাদের আমি একটু आइडिया दिए दिलाम। तुम लोग के आइडियाज ये टॉपिक्स MRM REM 11-12 बोथ सबको लगेगा, इसके साथ साथ तुम लोग को ये लगेगा बिजनेस स्टडीज़ में भी ये काम आएगा। ओके, थैंक्स।